السلام علیکم، میں ہوں تمانیہ اور یہ ہیں بال کیسے لگ رہے ہیں؟ یہ ہیں جعفر یہ بہت پرانا ہو گیا اور اتنے عرصے بعد جعفر نے یہ کینیڈین امیگریشن والی سیریز کے پارٹ 3 بنایا ہے کہ اب ہمارا بچہ بھی پیدا ہو گیا. ہاں بزی اوکے لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ کیونکہ زیادہ کام کس نے کیا. اچھا جی، اب جو ہے ہم آج یہ ہماری تیسری سیریز ہے ہماری جو امیگریشن کی ایک ہم کر رہے تھے کینیڈین امیگریشن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے اپنی پہلی سیریز میں بات کی کہ کیا پروز اینڈ کونس ہیں کینیڈا امیگریٹ ہونے کے. اور ایک سیکنڈ میں ہم نے یہ بات کی. سیکنڈ میں نے کیا بات کی تھی جعفر؟ بچہ پیدا ہو رہا تھا. زین کیا بات کی تھی؟ سیکنڈ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کس ایج کے اندر انسان کو جو اگر آپ کینیڈا آئیں تو کیا کیا مشکلات کا آپ کو چیلنجز کا آپ کو سامنا ہوتا ہے. تو ہم ہمیشہ جو آپ کو کینیڈا کی امیگریشن کی ایڈوائس دیتے ہیں وہ ہم اپنے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر دیتے ہیں. سو اگر آپ ہم سے پروسیس پوچھیں گے تو ہمیشہ ہم آپ کو کہیں گے کہ cic.gc.ca کے اوپر جائیے، اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیں. آپ کے جو سوالات ہیں ان سے ہمیں بہت ہیلپ ملتی ہے کہ ہم کن ٹاپک سے بات کریں. تو آج جو ہم بات کریں گے ہم یہ بات کریں گے کہ ہم لوگ البرٹا کیوں آئے، بیکاز کینیڈا میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے انلیس آپ پروفیشنل پروگرام کے تھرو آئیں، آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ کی امیگریشن ہوگی تو آپ کس پروونس کے اندر جائیں گے. اور اس کے بعد ہم کیلگری کی اسپیسیفک بات کریں گے. آئی نو اس ویڈیو کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ کیلگری کے اندر کیوں آیا جائے اور یہاں کہاں رہا جائے، لیکن آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہم البرٹا پروونس کی بات کریں گے. اچھا، میرا جواب تو بہت سمپل ہے. میں البرٹا اس لیے آئی کیونکہ میرا میاں یہاں رہتا تھا، ٹھیک ہے نا. سو میری ایک دوست کی شادی ہو رہی تھی اور ہم جو بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے رخصتی میں سے پہلے جو کمرے میں بیٹھے ہوتے تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری شادی کہاں ہو رہی ہے، تو اس نے کہا ایڈمنٹن میں ہو رہی ہے. میں نے کہا ایڈمنٹن، یہ کس بلا کا نام ہے، مجھے نہیں پتا. میں کینیڈا گئی ہوئی تھی، میں مونٹریال اور ٹورانٹو گئی ہوئی تھی زیادہ تر دنیا کی طرح. یہ بات ہے 2007 کی. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایڈمنٹن کہاں ہوتا ہے. یعنی مجھے نہیں پتا کہ ایڈمنٹن کہاں ہے. پھر میں نے واپس آ کر لٹرلی میں نے گلوب کے اوپر دیکھا کہ ایڈمنٹن کہاں ہے. ایک سال بعد جب جعفر کا رشتہ آیا تو وہ دوست سب سے زیادہ خوش تھی کہ تم ایڈمنٹن آ جاؤ. تو ہم البرٹا میں رہے ہیں، ایڈمنٹن اور کیلگری میں. تو میرا ایڈمنٹن آنے کا ریزن تو جعفر تھے. جعفر آپ بتائیں کہ آپ کیوں آئے؟ بیسیکلی میل آرڈر برائڈ تھی تو اس کو یہ لوگ سیریسلی سمجھ جائیں گے جعفر کی آدھی چیزیں مذاق ہوتی ہیں. سو میں آئی تھی، میں کینیڈا آئی تھی کیونکہ اس زمانے میں ایڈمنٹن کو ڈیڈمنٹن بھی کہا جاتا ابھی بھی کہا جاتا ہے. نہیں اب نہیں کہا جاتا. اچھا، بہت پروگریس کر گیا ایڈمنٹن. اچھا، میں نے ایکچولی I've said this before، میں جو آیا تھا آپ 2007 میں آئے تھے اور میں 2008 میں آئی تھی. میں آئی تھی ایز اے اسپاؤس ویزا پر آئی تھی، بٹ جعفر ایز این اکنامک امیگرینٹ میل آرڈر برائڈ ویزا پہ آئی تھی. اچھا، تو ہوا یہ تھا کہ میرا 2006 کے اندر جو ہے وہ انٹرویو وغیرہ میں نے 2001 میں اپلائی کیا تھا اور 2006 کے اندر میرا جو ہے نا وہ آ گیا تھا انٹرویو وغیرہ، اور وہ جو ویزا لگنا ہوتا ہے وہ آ گیا تھا. تو میرے ابا نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جاؤ گے. میں نے آئی تھنک I've said this before as well. تو میں نے انہیں کہا کہ کینیڈا میں تو 2 شہر ہیں، یا ٹورانٹو ہے یا وینکوور ہے، ان میں سے I'll go to one of them. مونٹریال کا the language barrier and all of that. تو میں نے انہیں یہ کہا تو he says کہ اچھا دیکھو this is like 2006. تو انہوں نے کہا کہ لک یہ 2 اور شہر ہیں، یہ کیلگری اور ایڈمنٹن، یہ بھی کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو why don't you take a look at them. تو میں نے جو ہے تھوڑا سا ریسرچ کیا کہ کیلگری اور ایڈمنٹن ہیں کیا. اس سے مجھے پتہ لگا کہ یہاں جو ہے بہت سارا کام جو ہے آئل اینڈ گیس ریلیٹڈ بہت ہو رہا ہے. And that was your field. That was my field. پاکستان میں جو میں نے کام کیا تھا پیٹروسن کے لیے، پیٹروسن کا پلگ کرنا، وہ آئل اینڈ گیس کا پروجیکٹ تھا بیسکلی. تو that was my background. تو میں نے جب تھوڑا سا اور ریسرچ کی تو میں نے found کہ a lot of the people that I used to work with پاکستان کے اندر وہ ادھر کیلگری یا ایڈمنٹن میں کام کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو دین آئی اسٹارٹڈ کانٹیکٹنگ دیم. اور میرا بہت ادھر جنید صدیقی میرا دوست. پر آپ کی امیگریشن ہو گئی تھی؟ میری امیگریشن ہو گئی تھی آن دا بیسس آف ورک ایکسپیرئنس، پرانا میرا ورک ایکسپیرئنس. تو لیکن پھر جو جانے کی جب بات آئی تو میں نے ان لوگوں کو کانٹیکٹ کیا. سوری بھائی، یہ ہمیں نیو بورن کے ساتھ ہم شوٹ کرا رہے ہیں. ہاں چلیے جی بولیں. تو اچھا، تو میں نے جب اس کو دس واز جو یہ وقت تھا نا، اس کے اندر چائنا واز پروگریسنگ، ایوری تھنگ واز لائک دیر واز اے بٹ آف اے بوم گوئنگ آن، دیر واز اے ہیوج بوم گوئنگ آن آپ کو ان جنرل کموڈیٹیز کے لیے، آئل اینڈ گیس ٹائپ چیزوں کے لیے.
तो उस वजह से फिर जब मैंने देखा तो बहुत सारे लोग मैं जानता था जो इधर काम कर रहे थे ऑयल एंड गैस के अंदर, जो मेरी बैकग्राउंड था, देन आई एंडेड अप कमिंग आउट हियर आफ्टर टॉकिंग टू देम कि इधर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और जो अल्बर्टा, हाँ। किस तरह के इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, क्योंकि मैं उस ज़माने में जब थोड़ी देर मैं इंग्लैंड में भी था, यूके के अंदर, एंड while that was an amazing place बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन एक job wise it wasn't that good, so that was the main driver, job prospects. हाँ, सो अल्बर्टा का, बट आई थिंक इससे जो लेसन लर्न है कि आप जिस टाइम के ऊपर आए तो उस वक्त आप थोड़ी सी रिसर्च करें और आप देखें कि जो आपकी फील्ड है उसकी किस प्रोविंस, क्योंकि जो हमने पहले मैंने जाफर ने सोचा था कि हम हर प्रोविंस की बात करते हैं, बट देन वी थॉट कि हम सिर्फ अल्बर्टा में ज़्यादा रहे, हम सस्केचुअन में बहुत थोड़ा अर्सा रहे हैं, हम सस्केचुअन में तकरीबन 1 साल रहे हैं, एंड उसके मैं तो उससे भी कम रही हूँ वहाँ, बट हमें ज़्यादा जो नॉलेज है वो अल्बर्टा की ही है. सो आप जिस भी प्रोविंस में जाएं वहाँ थोड़ी सी रिसर्च करें कि जो आपकी फील्ड है वहाँ उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं. अच्छा, अब जाफर ने तो कम विद एन ओपन माइंड एज वेल, क्योंकि मैं जो आया था वो लोगों से पूछते थे, वो कहते थे नहीं कैलगरी जाओ, यू नो बड़ा शहर है. एडमिंटन जैसे ज़माने ने कहा था डेडमिंटन कहलाता था, लेकिन यू नो इट्स वेयर द जॉब्स आर, दैट्स वेयर यू गोना गो. एंड हमें मूव भी करना पड़ा जॉब्स की वजह से. हाँ, जब हमने सस्केचुअन मूव किया था वो जॉब की ही वजह से मूव किया था, क्योंकि वहाँ का उस जमाने में एम्प्लॉयमेंट थे ना. अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरी फील्ड थी, जाफर तो अपनी फील्ड की वजह से आए थे और मैं तो स्पाउस वीज़ा के ऊपर आई थी, तो जब मैं आई थी तो मेरी जो फील्ड थी वो टेलीकम्युनिकेशंस थी, तो उसकी जो जॉब्स थी वो एडमिंटन में नहीं थी. तो जैसे जो वो ज़्यादातर जॉब्स या तो टोरंटो में थी या वैंकूवर में थी. कैलगरी के अंदर वो शॉ और टेलिस के साथ थी, बट वी वर इन एडमिंटन. तो एडमिंटन के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशंस की जॉब्स थी वो कस्टमर सर्विस की जॉब थी, जो मेरी फील्ड नहीं थी. मेरी फील्ड मार्केटिंग थी, तो मुझे थोड़ा सा अपनी फील्ड को अडेप्ट करना पड़ा और मैंने ये किया कि मैंने अपनी जो मार्केटिंग के अंदर मैं नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग की तरफ थोड़ा सा मूव कर गई थी. तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है कि अगर आपकी जो फील्ड है और अगर और एक और जो बात, ये हम खैर जॉब सर्च के जब हम बात करेंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम लोग यूजली जब आते हैं कनाडा के अंदर, मैं पाकिस्तान में जो मुझे लगता है टाइटल्स बहुत इन्फ्लेटेड होते हैं, तो आपको अपने टाइटल्स को थोड़ा सा यहाँ की मार्केट के लिहाज से अडेप्ट करना चाहिए. अगर पाकिस्तान में तो लाइक आई वाज 28 years old एंड आई वाज ऑलरेडी अ मैनेजर, सो वो अगर आप यहाँ किसी को बताएं तो लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आता. तो आपको थोड़ी सी अपनी जॉब की जो उसको टाइटल्स को थोड़ा सा अपने रेज्यूमे अडेप्ट करना पड़ता है. खैर हम उसकी बात जब हम जॉब सर्च के बारे में बात करेंगे तो हम तब करेंगे. तो अल्बर्टा हमारा जो रीजन था जाफर का, तो वो देखे ऑयल एंड गैस. अब हम बात करते हैं आजकल की सिचुएशन की, ठीक है ना. आजकल जो है ऑयल एंड, हर कोई आपको बताएगा कि जी अल्बर्टा की आई थिंक 2 चीज़ों के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है. एक तो लोग मुझे लगता है मोर सो देन एम्प्लॉयमेंट, लोग ज़्यादा वेदर की बात करते हैं कि एकदम से लोग हमेशा कहते हैं ओ अल्बर्टा वहाँ तो बहुत सर्दी है. कम विद एन ओपन माइंड. आई पर्सनली फील कि यहाँ की विंटर, मैं रही यहीं की विंटर के अंदर हूँ, इट्स नॉट दैट बैड, ठीक है, बिकॉज यहाँ की बहुत ड्राई विंटर होती है. तो जब हम -30, यस यहाँ देर आर दोज डेज -31 के, बट क्या होंगे यू नो मे बी आज है अभी -19 हो रहा है with 21 kph wind. हाँ, बट वी आर सिटिंग इन द हाउस, यू नो इट्स नाइस एंड वार्म, एज लॉन्ग एज आपकी गाड़ियाँ गर्म होती हैं, घर गर्म होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट गर्म होती है. मैं ये नहीं कहूँगी, हमने शुरू के टाइम के ऊपर मैं पापा की प्रिंसेस सर्दियों के अंदर बसेस भी ली हैं, ठीक है ना. तो ये बात नहीं है कि मैं सिर्फ गाड़ियों की ही बात कर रही हूँ. वी ऑल्सो टेकन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वेदर के अंदर, एडमिंटन के अंदर मैनेजेबल है. यहाँ सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, दैट इज बीन अडैप्टेड टू केटर फॉर दैट विंटर, टू केटर फॉर दिस विंटर. आपके यू नो रोड्स क्लियर हुई होती हैं, मेन हाईवेज क्लियर हुए होते हैं, आपकी बसिंग का कभी कोई मसला नहीं होता, आपके चीजें चलती रहती हैं. यहाँ कभी स्नो डेज नहीं होते, स्कूल चलता रहता है. लाइक अब जब से हमारे बच्चे स्कूल गए हैं ना, सो कम विद एन ओपन माइंड. यस, यू नो appropriate. The first thing you need to do is you need a good coat, you need a good pair of shoes, और आपको जो mitts है और जो टूक है वो सब कुछ आपका ड्रेस अप्रोप्रिएटली, और you will be okay. Like अल्बर्टा आने के लिए मुझे लगता है बहुत सारे लोग एकदम से वेदर को एक बैरियर बना लेते हैं कि ओहो वहाँ बहुत सर्दी है. As I'm saying, पूरा कनाडा जो है ना बेसिकली वाइट है,
ठीक है, वाइट है, लाइक there is a reason वो white है. you can't get away from हाँ, it, ठीक है, so हर जगह और होगा. जैसे अभी मेरा नेफ्यू आया हुआ था वैंकूवर से, तो except for Vancouver white इतना नहीं हाँ वैंकूवर वाइट नहीं था, बट जैसे भी मेरा नेफ्यू आया हुआ था तो वो यही कह रहा था कि वहाँ बहुत वेट विंटर होती है. तो बिल्कुल यहाँ जो है अल्बर्टा के अंदर 2 कनाडा की सनियस्ट सिटीज हैं, बोथ एडमिंटन एंड कैलगरी गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सन इन द ईयर. तो अगर आप -31 भी है तो धूप निकली हुई होती है, विच इन सम वेज इज वेरी वेरी गुड. सो डोंट लेट वेदर बी आपका लिए एक उसको वो ना रखें, जैसे होता है ना एक बैरियर ना रखें. आई थिंक आपकी जो पहला कंसिडरेशन शुड बी योर जॉब प्रोस्पेक्ट, Employment, सबसे पहले. कहाँ आपकी हम सबसे बेहतर हम जब है. सस्कैचुअन मूव किए थे तो एक्चुअली वहां से आकर मुझे अल्बर्टा का मौसम इतना, खासतौर पर कैलगरी में तो स्नोक विंड्स भी होती हैं, वो एक डिफरेंट उसकी वेदर की. जब हम एडमिंटन और कैलगरी की बात करेंगे तो हम इस बारे में बात करेंगे, बट वहाँ तो प्रेरीज है और -50 किलोमीटर्स kph पे विंड चल रही होती है. तो उसके अंदर जहाँ वहाँ नौकरी थी तो हम वहाँ भी रहे. तो जहाँ सबसे पहले बात है कि आपकी नौकरी है, बट हम नौकरी की, रहे. हाँ मैं तो वहाँ कम ही रही थी. अच्छा, अब हम अगर बात करें नौकरी की, तो अल्बर्टा की जो इकोनॉमी है, बहुत लोग ये बात करते हैं कि जो अल्बर्टा की इकोनॉमी है बहुत ऑयल एंड गैस डिपेंडेंट है. जाफर, आप इंपीरियल ऑयल में काम करते हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? पता है, मैं ऑयल एंड गैस, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ मैं ऑयल एंड गैस में हूँ, लेकिन जो ऑयल एंड गैस यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है वो है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड. हाँ, अल्बर्टा के अंदर. तो आपकी यहाँ मतलब ऑयल एंड गैस रिलेटेड कंस्ट्रक्शन बहुत होती है. हाँ. तो उसके अंदर आपकी बहुत सारी नौकरियाँ निकलती हैं, उसकी आपकी इंजीनियरिंग की, उसकी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, उसके बाद ऑल ऑफ दी सपोर्टिंग फंक्शंस, उसके फाइनेंस वगैरह, अकाउंटिंग, वो सारा कुछ होता है. एंड मेरी हमेशा से कंस्ट्रक्शन के अंदर मेरी नौकरी रही है, ऑयल एंड गैस रिलेटेड कंस्ट्रक्शन. तो बेसिकली मजदूर दिहाड़ी वाला. तो जो मैंने तमानी के अम्मी अब्बा को नहीं बताया था, मैं तो कहता था ऑयल एंड गैस में मैं झूठ, हमारे साथ धोखा हुआ. तो बट कंस्ट्रक्शन में पैसा लगता है, पैसे से नौकरियां आती हैं, सो इधर उस किस्म की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत एम्प्लॉयमेंट और बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं. और गवर्नमेंट इज लाइक एनीथिंग, गवर्नमेंट इज एन एम्प्लॉयर. यहाँ मैंने जैसे कहा शॉ और जो टेलिस हैं, 2 बड़ी कंपनीज हैं, वो एम्प्लॉयर्स हैं. इसके अलावा यहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, IT की अब जॉब्स आ रही हैं यहाँ. दूसरी एक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब जो एक विद द राइज ऑफ रिमोट वर्क, मैं अपना जो मेरा ब्लॉग का काम है, मैं बहुत ज़्यादा जो मेरे जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वो टोरंटो में रहते हैं, तो मैं यहाँ होती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं रिमोटली उनके साथ काम कर रही होती हूँ. प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है. कई लोग ऐसे हैं जिनकी जो जॉब्स होती हैं वो लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर वो ऑन्टेरियो के अंदर भी हैं, लेकिन वो रिमोटली काम कर सकते हैं. अल्बर्टा आने का फ़ायदा क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें बात करते हैं. ये यहाँ का जो अल्बर्टा एडवांटेज है, ये तो मेरी अम्मी भी पहचानती है. अल्बर्टा एडवांटेज जो ये है कि यहाँ बड़ा टैक्स जल्दी कम है, पहचानते हैं. बड़ा जल्दी पहचानते हैं कि यहाँ टैक्स जो 5% है, ठीक है ना. तो आपका सेल्स टैक्स जो है, GST जो है वो 5% है. जो अल्बर्टा के जो कनाडा के जो बाकी प्रोविंसेस हैं उनके अंदर HST होता है जो कंबाइंड होता है, तो उसके अंदर आपको प्रोविंशियल टैक्स भी लगता है. अल्बर्टा में कोई प्रोविंशियल टैक्स नहीं है. तो जो वाहिद टैक्स लगता है जो GST है वो गवर्नमेंट की तरफ का टैक्स है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ का टैक्स है. तो ये चीज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. सो एनीथिंग दैट यू बाय, जैसे यहाँ आप $100 की चीज खरीदेंगे तो वो आपको 105 की पड़ेगी, क्योंकि 5% उसके ऊपर GST है. अगर वही चीज आप वैंकूवर में लेंगे, आई थिंक वहाँ 13% है. मैं नीचे इस वीडियो की नीचे मैं सब प्रोविंसेस के लिख दूंगी कि क्या क्या उनके टैक्सेस हैं. तो वो जो कंबाइंड फिर जो पूरा टैक्स बनता है, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोविंस से वो टैक्स 13% होगा तो $100 की चीज आपको 113 की मिलेगी. ये तो हमें जब हम सस्कैचुअन में भी रहते थे तो हम अल्बर्टा आते थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमें पता होता था कि यहाँ जो चीज़ें बड़ी बड़ी अगर आपने आइटम खरीदने तो वो आपको सस्ते पड़ते हैं. तो ये एडवांटेज हर चीज़ में फिर ट्रिकल होता है, क्योंकि आप जो भी चीज़ खरीदेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक स्मॉल बिजनेस है और अगर मैं किसी को इनवॉइस करती हूँ तो उसमें मैं सिर्फ 5% GST लगाती हूँ मैं. और कई दफ़ा जो टोरंटो की कंपनीज होती हैं वो समझती है कि मैं HST लगाऊंगी, मगर मैं वो नहीं लगाती, तो मैं सिर्फ 5% GST लगाती हूँ. इसके अलावा यहाँ की जो हाउसिंग मार्केट है उसमें इतनी आग अभी तक नहीं लगी हुई, राइट, कंपेयर टू. मुझे बहुत ब्लॉग पे सवाल आते हैं, लोग कहते हैं कि हम टोरंटो में रहते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, मगर हमारे लिए घर खरीदना अफोर्डेबल नहीं है. तो जाफर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि आपकी कैलगरी एंड एडमिंटन आर 2 ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सिटीज विद इन कैनेडा एज फार एज हाउसिंग इज कंसर्न. आपकी क्योंकि यहाँ आपके घर इतने महंगे नहीं हैं, आपकी जो इनकम है कंपेयर टू दैट, इनकम्स आर हाई
and houses are still a lot more affordable compared to, you know, जो आपके बाकी बड़े शहर अगर आप देख लें, like Toronto, Vancouver, Regina थोड़ा सा ज़्यादा और सस्ता है, लेकिन इसके बारे में, you know, if you're gonna you know, think about buying a place, आप थोड़ी research करके आएं, क्योंकि जो आप बहुत आराम से देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, यू नो, आप बड़ी इन्फॉर्म्ड डिसीजन करके आ सकते हैं. आप realtor.ca पे जाइए. realtor.ca यहाँ की वेबसाइट है घरों की उसके लिए प्राइस के लिए. अगर आप रेंट की देखना चाहते हैं तो रेंट फास्टर. अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हर जगह डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो उस इलाके के लिए मशहूर होती हैं. सो अल्बर्टा के अंदर rentfaster.ca एक वेबसाइट है. अब तो फेसबुक मार्केट प्लेस भी बहुत लोग अपने घर किराए पे लगाते हैं. उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने का 2 बेडरूम का कॉन्डो या 3 बेडरूम का टाउन हाउस या 4 बेडरूम का घर आपको कितने किराए पे मिलेगा, क्योंकि इनिशियली अगर आप किराए पर आएंगे और अगर आपने घर खरीदना है, बिकॉज कई लोग मिडल ईस्ट से आते हैं और उनको होता है कि अच्छा हम घर खरीदें, तो आप realtor.ca के ऊपर आप उसकी घरों की प्राइस देख सकते हैं. तो जैसे जाफर ने कहा कि आप बहुत इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं. हमने अल्बर्टा में 2 बड़े शहरों की बात की है, कैलगरी और एडमिंटन, क्योंकि इन दोनों शहरों में हमें रहने का इत्तेफाक हुआ है. इसके अलावा भी यहाँ बहुत से सिटीज़ हैं. लॉयड मिनिस्टर है, वहाँ लोग रहते हैं. रेड डियर है, मेडिसन हैट है, ग्रैंड प्रेरी है, ये भी जगहें हैं. मगर यहाँ क्योंकि हमें रहने का खुद इत्तेफाक नहीं हुआ है. बैंफ जो है वो बहुत खूबसूरत यहाँ का एक टूरिस्टी इलाका है. इन जगहों में क्योंकि हम रहे नहीं है तो हम यहाँ के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि विद इन अल्बर्टा अगर आपने ड्राइव करनी हो तो बहुत चीज़ें, बहुत खूबसूरत इलाके विद इन ड्राइविंग डिस्टेंस एक्सेसिबल हैं. बैंफ तो यहाँ से 1.5 आवर दूर है. काफी बड़ा टूरिज्म के लिए हम, क्योंकि आई थिंक वी टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज़ वी लिव ओवर हियर, तो हम हमारे से 1.5-2 hours के डिस्टेंस पे है, ठीक है. तो माउंटेन्स है, बिल्कुल एक डिफरेंट लैंडस्केप हो जाता है. और तो लोग बड़े मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो आई थी जर्मनी से, और हम उससे पूछे थे तुम जर्मनी से यहाँ क्यों आई, तो उसने कहा कि यू नो मैं तो खास तौर पे घूमने आई थी. दिस इज जस्ट अ जोक. बहुत कोविड की वजह से ऑफ कोर्स टूरिज्म कम हो गया, लेकिन यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं. मतलब है जॉब्स भी बहुत हैं आपकी, जो क्या होती है सर्विसेज रिलेटेड इंडस्ट्रीज की बहुत जॉब्स हैं उधर. तो बल्कि सर्विसेज के अंदर तो लोग बहुत ढूंढ रहे होते हैं, उनको लोग नहीं मिलते. कुछ जगहों के ऊपर, कुछ कनाडा के प्रोविंसेस के अंदर लोग कहते हैं कि एंड ये एक और बात है कि जब आप कनाडा आए तो कम विद वेरी ओपन माइंड. यहाँ एवरीवन हैज बिल्स टू पे, ठीक है ना. तो अगर आपके पास बीच में जॉब नहीं होगी, लाइक दिस इज समथिंग दैट जाफर एंड आई हैव ऑलवेज डिस्कस्ड, कि अगर हमें कोई रिसेशन चल रही है, अगर नौकरी चली जाएगी तो हम हमेशा करते हैं कि वी विल स्विच टू एन ऑड जॉब, ठीक है. ऑड जॉब यहाँ उस टर्म को कहा जाता है कि एक जो जॉब है वो मे बी आपके करियर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन दिस इज द जॉब दैट यू आर डूइंग बिल्स पे करने के लिए, क्योंकि आपने रेंट उसी तरह पे करना है. अगर आपका घर है तो मॉर्गेज पे करनी है, वो बिल्स कहीं नहीं जाते. कोई अम्मा अब्बा का खाता नहीं है जिससे आप पैसे ले सकते हैं. सो और जॉब उस टर्म को कहते हैं कि जो टर्म आप करने के लिए देते हैं. मेरा खुद मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो टोरंटो से कंपेयर करते हैं वो कहते हैं कि अल्बर्टा में और जॉब मिलना रिलेटिवली आसान है, कि और जॉब्स अवेलेबल होती हैं. अगर आपको बीच में इंटरम, अगर आपको कुछ सर्वाइवल जॉब या और जॉब चाहिए तो वो मिल जाती है. तो शुरू में अगर आप आएंगे तो अगर आपको करनी पड़े तो उसके बारे में लाइक बिल्कुल कोई कबाहत नहीं है. यहाँ हर जॉब के अंदर रिस्पेक्ट होती है, ठीक है ना. तो वही वाली जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर आप बात कर लें अल्बर्टा के अंदर, तो ये बहुत है कि अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं तो सस्ती इंटरटेनमेंट इस तरह से अवेलेबल है कि गाड़ी में बैठे और आप घूम फिर सकते हैं. आपको हंसी क्यों आ रही है? सॉरी, मैंने किक मारी थी, उसको तमानी सही कर रही है और अब सही हो गया. हाँ. अच्छा, और लेकिन जो है ना, ठीक है, फाइन और जॉब्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन यहाँ की जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, दैट्स ट्राइंग रियली हार्ड टू डाइवर्सिफाई. हाँ, फ्रॉम ऑयल एंड गैस के अंदर तो हमारी यहाँ केमिकल्स की इंडस्ट्री काफ़ी इट्स टेकन ऑफ, और आपकी टेक सेक्टर भी यहाँ काफ़ी इज डूइंग फेयरली ओके. तो यू नो दे ट्राइंग टू डेवलप. हाँ, तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. तो हम अल्बर्टा का बहुत बड़े जोर से हमने प्लग किया, लेकिन बट इट इज अ वेरी क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है. हाँ, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई आप अल्बर्टा में क्यों रहती हैं, राइट. लाइक एक और सवाल कैलगरी का भी होता है, वो एज आई सेड कि नो वी टॉक अबाउट इट डिफरेंटली.
हम अल्बर्टा में रहे में लाइक मेरा तो सारा कनाडा में रहने का एक्सपीरियंस एक्सेप्ट फॉर ईयर टू 6 months इन सस्कैचुअन सारा एक्सपीरियंस अल्बर्टा का ही है. मैं इसकी अल्बर्टा की हेल्थ केयर की भी बात करना चाहती हूँ कि बहुत अमेजिंग हेल्थ केयर सिस्टम है. एज आई सेड कि जो बाकी प्रोविंसेस के अंदर आपको जो हेल्थ केयर होती है, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है, मगर अल्बर्टा के अंदर आपको हेल्थ केयर का कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता. वहाँ बाकी प्रोविंसेस के अंदर आपको जैसे किसी भी इंश्योरेंस के लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है कि फिर उससे आपको इंश्योरेंस का कवरेज मिलता है. अल्बर्टा में देयर इज जीरो प्रीमियम. द डे यू लैंड आप हेल्थ केयर कार्ड अप्लाई करें, आपके लिए हेल्थ केयर फ्री है. इसका मतलब है आपका अस्पताल जाना, इमरजेंसी रूम जाना, डॉक्टर को देखना, कई मेडिकल सर्विसेज फ्री हैं. इसके अंदर दवाइयाँ और डेंटल कवर नहीं होता, लेकिन वो भी कुछ वनरेबल ग्रुप्स को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है. और अभी रिसेंटली अल्बर्टा ने मेंटल हेल्थ सर्विसेज के ऊपर भी बहुत इन्वेस्टमेंट की है. कि बात ये कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का. हम सुनते हैं बाकी प्रोविंसेस से कि लोगों को और उससे फिर रिलेटेड Jobs जॉब्स भी बहुत हैं. जॉब्स और बाय द वे यहाँ हमारा बिगेस्ट कैंसर सेंटर इन नॉर्थ अमेरिका जो है वो यहाँ खुल कैलगरी रहा में खुल रहा है. बिल्कुल. तो यू नो दीज आर लाइक ऑफ कोर्स कोई है. भी तो जब डॉक्टर्स प्लीज कम ओवर. हाँ. एंड दूसरी बात ये है कि हाँ बिल्कुल. और एज आई सेड कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मगर हम और लोगों से सुनते हैं कि दूसरे प्रोविंसेस के अंदर उनको बहुत लंबा वेट करना पड़ता है सर्जरीज और इन चीज़ों के लिए. अल्बर्टा के अंदर थोड़ा वेट टाइम कम है. हमें कभी भी लाइक हर जगह इमरजेंसी रूम वगैरह पे वेट टाइम्स लिखे हुए होते हैं. आपको पता होता है कि आपने किस किस हॉस्पिटल आप जा सकते हो. अभी यू नो मेरे तो तीनों ही बच्चे सी सेक्शन से पैदा हुए हैं. एक धल्ला नहीं दिया हमने. ऑफ कोर्स हम टैक्सेस के थ्रू पे करते हैं. ऑफ कोर्स यू नो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि आप टैक्सेस देते हो, बट जैसे हमने कहा कि यहाँ टैक्स भी जीएसटी जो है 5% है, और चीज़ों पे आपको टैक्स पड़ते हैं. आपको वो विच इज़ नॉट द स्कोप ऑफ आवर टॉपिक, बट आपका जैसे आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, अगर आपका बिजनेस हो तो आपके प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं, फेडरल टैक्सेस होते हैं, वो एक डिफरेंट डिबेट है. मगर जो जीएसटी है वो आपका 5% है. तो हेल्थ केयर इन इट सेल्फ इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्राइटेरिया टू कम टू अल्बर्टा. और प्लग फॉर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इधर अल्बर्टा में सम ऑफ द बेस्ट हमने मतलब ये अभी रिसेंटली हॉस्पिटल्स के कुछ चक्कर काटे Amazing हैं. staff, और amazing यू नो staff. कभी भी हाँ कुछ हुआ है, अमेजिंग स्टाफ ऑलवेज बिन वेरी वेल टेकन हाँ केयर ऑफ. लाइक मेरा जो नो हाँ, कंप्लेंट्स एट नो ऑल. कंप्लेन. मेरा भाई जो है वो अमेरिका से जब भी आता है तो वो कहता है कि आई कैन नॉट बिलीव इट कि ये एक गवर्नमेंट रन यू नो पब्लिक सिस्टम है. किसी को कोई वो नहीं है कि बैरियर नहीं है कि वो नहीं आ सकता. जो विजिटर्स होते हैं ऑफ कोर्स दे हैव टू पे फॉर इट, बट अगर आप अल्बर्टा के रेजिडेंट हैं तो आपके लिए नॉट इवन सिटीजन, रेजिडेंट एज वेल. रेजिडेंट है. हाँ रेजिडेंट में, हाँ रेजिडेंट है. आपको सिटीजन होना, सिटीजन के लिए से आप वोट कर सकते हैं. दैट इज द ओनली डिस्टिंक्शन. रेजिडेंट हैं तो आपके लिए ये सब चीज़ें फ्री हैं. और हमने अल्बर्टा की इसलिए बात की, आई थॉट कि हम इसलिए बात कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ खुश हैं. लाइक होता है ना कई दफ़ा लोग बहुत सारे लोग जो हैं जब कनाडा इमिग्रेट होने का सोचते हैं तो वो लोग सोच रहे थे कि हम किस सिटी के अंदर जाएं. तो उनको लगता है कि अच्छा अगर टोरंटो में बहुत सैचुरेशन हो गई है, और या अगर जैसे वैंकूवर, लाइक उनको लगता है कि यहाँ हमारे, तो आपके लिए अल्बर्टा एक अच्छा ऑप्शन है. यू नो दिस इज समवेयर दैट यू कैन. रिसेंटली हमने देखा है बहुत इमिग्रेंट्स आना शुरू कर दिया यहाँ. पहले हमें लगता था कि लगने अब आते हैं. अफोर्डेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एंड इट इज़ अ वेरी डिसेंट साइज सिटी के. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है. भाई ये कैलगरी की बात करूँ, कैलगरी एंड एडमंटन बोथ ऑफ देम, तो अफोर्डेबिलिटी की वजह से बहुत लोग यहाँ मूव कर रहे हैं. ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है. लाइक यू नो जैसे बहुत जो बड़े सिटीज़ के अंदर मसले होते हैं, यहाँ हम दोनों सिटीज़ में रह चुके हैं. एज सच यू नो कोई रश आवर ऑफ कोर्स हर जगह होता है, बट लाइक इतने कोई डिस्टेंसेस नहीं है. एक और जो बात जो मैं करना चाहूँगी, कई लोगों का ख्याल होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यू नो कि ये अल्बर्टा इज द टेक्सास ऑफ अमेरिका, यू नो बिकॉज उनको लगता है कि यू नो ऑयल एंड गैस और ये वो, और हमारी स्टैम्पीड भी होती है, उनकी भी होती है. तो कई लोगों को बहुत कंसर्न रेसिज्म की होती है. हमें यहाँ रहते हुए कितने 13 साल हो गए. हमें हमेशा वी ऑलवेज हैड द बेस्ट ऑफ नेबर्स. हमारा जो भी इंटरेक्शन रहा है और लोगों के साथ स्कूल लेवल पे, काम की लेवल पे, कम्युनिटी लेवल के ऊपर बहुत अच्छे लोग होते हैं. लाइक जैसे कहते हैं ना आप ख़ानदानी अच्छे लोग होते हैं, और ताली दोनों हाथों से बचती है. आप भी अच्छे हों, आप भी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करें, इंटीग्रेट होने की कोशिश करें. हम लोग बहुत कोशिश करते हैं एज अ फैमिली टू एक्टिवली वॉलंटियर आवर टाइम, ताकि यू नो टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. तो हमें बहुत हमेशा यहाँ रिस्पेक्ट मिली है. कई लोगों को ये भी एक ख्याल होता है कि ओ यहाँ कोई इस्लामोफोबिया तो नहीं है, यहाँ क्या रेसिज्म तो नहीं है. हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें. रिलेटेबल यहाँ के जो लोग हैं वो
you know they're ہماری طرح کے ان کا کافی کنزرویٹو فیملی اورینٹیڈ بلیفس ہیں جیسے ہمارے یہاں نیبرہڈ میں جتنے لوگ ہیں تو اٹس یو نو ونس یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو دم یو ہیو ٹو پٹ ان دی ایفرٹ کہ یو نو یو انٹیگریٹ تو وہ جب ہوتا ہے دین یو ریئلائز کہ آپ سے کتنے یہ کلوز ہیں. ہاں سو دی امپورٹنٹ تھنگ از ٹو انٹیگریٹ. اور یہ بھی میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتی تھی بیکاز کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ البرٹا کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کا ایک جو آئی تھنک البرٹا کا تھوڑا سا ڈاؤن سائز ہے کہ اتنی اگر آپ نے فار ایگزامپل امیگرینٹ ہیں کوئی ڈاؤن سائڈ نہیں البرٹا نہیں آف کورس ڈاؤن سائڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ ابھی ہماری اتنی کوئی کنیکٹنگ فلائٹس نہیں ہے اگر آپ کو مڈل ایسٹ یا پاکستان جانا ہے, ٹھیک ہے نا. لائک آف کورس جب آپ امیگرینٹس ہوتے ہیں تو یو نو آپ کا ایک ریزن ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے یو نو فیملی ہے یا کنیکشنز ہیں آپ نے جانا ہے تو دیٹ از ون ڈاؤن سائڈ. ہمیشہ سننے میں آتا ہے کہ ابھی ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوگی بٹ ابھی تک کوئی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے. جو باہر پاکستان کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے وہ PIA کی ہے جو ٹورانٹو سے جاتی ہے. اس کے علاوہ یہاں سے تو کوئی ون اسٹاپ ایک انہوں نے شروع کی ہے برٹش ایئر ویز نے بٹ ہم نے تو اس پہ ٹکٹ بک کرایا تھا تو انہوں نے گڑبڑ کر دی تھی کچھ گیٹ ویک اور ہیتھرو کا کہ ایئرپورٹ چینج کرنا تھا. ادروائز دیٹ از ون آپشن جو تھا. آئی ایم ناٹ شیور کہ ابھی وہ برٹش ایئر ویز کا ہے. اس کے علاوہ یوزلی جو زیادہ تر آپشنز ہیں وہ 2 اسٹاپ اوور کے آپشنز ہیں. تو دیٹ از جسٹ یو نو لائک اے اسمال ڈاؤن سائڈ سم تھنگ ٹو یو نو ٹو کیپ ان مائنڈ. تو یہ ہمارا انالیسس تھا البرٹا کے بارے میں. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی اور سوال ہوں البرٹا کے بارے میں تو آپ ہم سے ضرور پوچھیں. زین صاحب سو چکے ہیں. میڈ ان البرٹا. ہاں یہ بچہ میڈ ان البرٹا ہے. زینب جو ہے وہ میڈ ان سسکیچوان ہے کیونکہ وہ ہماری بچی وہاں پیدا ہوئی تھی اور جو حسین اور زین ہے وہ یہاں پیدا ہوئے. تو ہمارا تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. ہم آپ کو ہائیلی انکریج کریں گے کہ آپ البرٹا آئیے اور مشکل سے نہ گھبرائیے. اور اگر آپ کے کوئی البرٹا سے ریلیٹڈ سوال ہوں تو ہمیں ضرور بتائیے گا, ٹھیک ہے نا. جو ہم نے کچھ پوائنٹس بات کی ریفرنسز تو میں آپ کو نیچے ایڈ کر دوں گی, ٹھیک ہے. ختم کریں. تھینک یو. سب سے زیادہ میں ہی بولی ہوں. I think 80% میں بولی ہوں سٹیا کے اندر. Yes, you're the wife. You're supposed to. تم اچھا بولتی ہو نا, بہت اچھا بولتی ہو. چلے اوکے جی, اللہ حافظ.